Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel. And today I'm going to explain the next topics of glass amphibia. That is the chapter. That is a book name is the zoology and the course name is coded diversity. So what do you say about the next topics of amphibians? For example, the first topic is of the today that is known as a vocalization. Vocalization, that is a production of sound. एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर एम्फीबियंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेनली द मेन पर्पस ऑफ दिस वोकलाइजेशन इज जस्ट is especially for the this vocalization just for the reproduction. That means the main role of this vocalization is the time when the time period of breeding season comes, then these amphibians vocalize or produce a sound to attract the opposite sex of the same species. So this one is a primary function of vocalization, and all of these amphibians produce, especially frogs, produce the sound during this mating behavior. So types of vocalization, there are the four different types of vocalization: advertisement call, like receptive call. Another kind of a call is called as a receptive call, then the release call, then the distress call. So these are the four different types of vocalization. So first one is the advertisement call. When these amphibians show this kind of vocalization, for example, advertisement call is it is a kind of vocalization, or it is a kind of call that is produced, or this sound is produced when it attracts the females toward the to the breeding places, and this sound is produced by the males. So in this condition, these amphibians produce such kind of advertisement call to attract the opposite sex for the mating. For the mating. And the next one is about this advertisement call is species specific. They especially shows a vocalization to attract the same species for the mating. And this call is the expression of the psychological and physiological readiness to breed by this species of the amphibians, like in case of frogs, like in case of anurans. So this one is known as the advertisement call. The next one call is the receptive call. This call is especially this kind of vocalization is made by the females. When a female shows a receptiveness, in that condition a female produces kind of a receptive call. So the next one is the another kind of call, you can see here. This one is a frog, and here is a large size vocal sac that filled by the air when these shows a vocalization. So such kind of very strange vocal sac for the different behaviors. Like the next one is the release call. That is a call number 3. This call is especially this call is always or this sound is always produced when the partner of this mating behavior is not ready to mate with the opposite sex, or in this condition, when the females are not ready and the male attempts to implexis. Implexis is a condition when a male grab a female. In such a condition, a female shows a release call. This is such kind of call is a release call. Another kind of another one one once another kind of call can be this sound can be produced by the female, or the such kind of call is always produced by the male. In that condition, when a male mistakenly grab another male, so in that condition, this kind of call, release call, can be produced by the another organism. So what do you say about distress call? The distress call is especially is a call of when the one species show the response to pain, or you can say that when that species is endangered. So in that condition, it produced such kind of distress call. This call is just to prevent from the predator, and this call is a massive call, so the predator can run away from here. So this is known as a distress call, and these such kind of distress calls, examples of this call, साउथ अमेरिकन जंगल में जो फ्रॉग हैं, लाइक लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस हैं, ये ऐसे
ऐसी तरह के फ्रॉग्स हैं कि जो खास तौर पे बिल्कुल ऐसी कॉल प्रोड्यूस करते हैं जैसे कैट्स डिस्ट्रेस में कॉल प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ वेरी ह्यूज kind of call. Also, this, what do you say about the sound producing apparatus? The sound producing apparatus of frog consists of the larynx and it consists of the vocal cords. अगर हम इसके laryngeal apparatus को देखें तो वो काफ़ी डेवलप है मेल के अंदर, खास तौर पे जो है वो वोकल सैक्स वो एक स्पेशली वोकल सैक पे मुश्किल है. वोकल सैक जो है वो एक दैट इज डेवलप फ्रॉम द डायवर्टिकुलम ऑफ द बक्कल कैविटी. जो बक्कल कैविटी की डायवर्टिकुलम है वहां से डेवलप किया हुआ ये वोकल सैक है. इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एयर जो है वो लंग से आती है और लंग से जब एयर बाहर आती है तो वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है. वोकल कॉर्ड्स के इर्द गिर्द जो है जैसे कि लेरिंग्स वहां पे प्रेजेंट है और लेरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. जैसे वाइब्रेट करते हैं तो मसल्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट होता है और टेंशन से एक साउंड जो है वो माउथ के ऊपर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. सो दिस वन इज द स्पेशल मैकेनिज्म दैट इज प्रेजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोकलाइजेशन. वोकल्स जो है वो एक्ट एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दे आर एक्ट एज अ रेजोनेशन, शो द रेजोनेशन, and so that's why it can easily produce the sound. What is about the importance of sound production? ये importance क्यों है, ये साउंड क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जब खास तौर पे ये जो है एक ही जगह पर एक ही ब्रीडिंग प्लेस पे इन्होंने इकट्ठा होना होता है या एक हैबिटेट में डिस्पर्स करना होता है, फैलना होता है, तो उस दौरान ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड वन जो है, अगर बहुत सारी फ्रॉग की स्पीशीज जो हैं वो एक ही पॉन्ड के अंदर रह रही हों और वो ब्रीडिंग के लिए हों और वो फॉर एग्जांपल जो है वो मेड को फाइंड आउट कर रहे हो, तो देन इस कंडीशन में भी वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे जो ऑपोजिट सेक्स है लाइक फीमेल जो है उसको अट्रैक्ट करना. और दिस काइंड ऑफ वोकलाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द टोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस. सो ये टोड है और इसके अंदर ये वोकलाइजेशन पैटर्न है कि पूरी बॉडी का जो है वो ऐसे गोलगप्पे की तरह जो है वो फूल जाती है. ये नेक्स्ट वन वोकलाइजेशन स्मॉल फ्रॉग जो है और ट्री फ्रॉग जैसे बोलते हैं उसके अंदर वोकलाइजेशन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेंटल केयर. पेरेंटल केयर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. पेरेंटल केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे सैलेमेंडर, सिसिलियंस और ये एनोरॉन्स जो है इनमें ऑब्जर्व की जाती है. फॉर एग्जांपल ये जो है पेरेंटल केयर का फायदा क्या, व्हाट इज द एडवांटेज? द मेन एडवांटेज ऑफ द पेरेंटल केयर is a chance of the egg development. The eggs that are laid by the female, uh, the chance of that eggs development is enhanced when the parents show some kind of interest or they show some kind of care to that eggs and embryos or larvae. So this is the parental care. बट इट रिक्वायर लार्ज एनर्जी एक्सपेंडिचर. इसके लिए बहुत सारी एनर्जी पेरेंट्स को चाहिए होती है. इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल दोनों जो है वो अपने एग्स क्लच जो होता है, दैट इज अ नंबर ऑफ एग्स. एग क्लच मीन नंबर ऑफ एग्स जो है वो उसकी केयर करते हैं. मिटरनल केयर कुछ स्पीशीज में देखी गई है, खासतौर पे उन स्पीशीज में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर मिटरनल यानी मदर जो है वो अटेंड करती है अपने डेवलपिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सैलेमेंडर और सिसिलियंस के अंदर मिटरनल केयर खासतौर पे देखी गई है. लेकिन जो एनोरॉन्स हैं, एनोरॉन्स के अंदर खास जो देखा गया वो पैटर्नल केयर है, यानी फादर जो है वो केयर करता है. और चूंकि उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो इन दैट कंडीशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन एम्फीबियंस में होती है उनमें पेरेंट्स केयर करते हैं. लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सैलेमेंडर है, दिस इज सैलेमेंडर, और ये सैलेमेंडर के बहुत सारे एग्स को जो है वो केयर कर रही है. और ये मदर केयर है, इंटरनल केयर है. इस तरह ये सिसिलियंस हैं, ये भी सिसिलियन फीमेल जो है वो रैप कर लेती है अपनी पूरी बॉडी को उन एग्स के गिर्द. और जबकि ये जो फ्रॉग है इसमें ये मेल फ्रॉग जो है वो अपनी बैक पे जो है वो बहुत सारे एग्स कैरी कर रहा है. इसमें जो है इसका रोल क्या होता है पेरेंटल केयर में? पेरेंटल केयर में जो पेरेंट होते हैं वो ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदा देते हैं उन एग्स की डेवलपमेंट के हवाले से. फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एग्स होते हैं उनमें एरेशन का प्रोसेस जो है. देन जो पेरेंट होते हैं वो क्लीनिंग का और मॉइस्ट जो है क्लीनिंग करते रहते हैं उस एरिया की जहाँ पर वो एग्स रखे होते हैं, उस एरिया को मॉइस्ट रखते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, और उन एग्स की प्रोटेक्शन करते हैं किसी प्रेडेटर से. और इसके अलावा जो है जो डेड एग्स होते हैं, यानी जो एग्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाते, उनको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से एग्स जो है वो उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट स्टॉप हो गई है, तो उन एग्स को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, वहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है. और इसके अलावा एग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो इन केस ऑफ इंडेंजर, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो पेरेंट्स जो है वो इनको ट्रांसफर भी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल फीमेल जीनस पाइपा जो है
पाइपा की जो फीमेल होती है वो क्या करती है कि वो अपने एग को अपनी बैक के ऊपर कैरी करती है। जैसे लास्ट वाल जो है वो टोड के अंदर देखा, तो ऐसे ही पाइपा के अंदर भी जो फीमेल्स जो हैं वो अपनी बैक के ऊपर कैरी करते हैं एग्स को। इसी तरह रियोपेट्रिकस स्पीशीज जो है वो उसकी 2 स्पीशीज जो खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, और इन स्पीशीज के बारे में कहते हैं कि ये कहा जाता था 1980s के करीब-करीब जो है कहा गया कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन इन स्पीशीज के बारे में कहते हैं कि इसमें भी फीमेल जो होती है वो खास तौर पे अपने बच्चों की केयर कर रही होती है। रियोपेट्रिकस स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें फीमेल जो है वो अपने टैडपोल जो होता है, टैडपोल लार्वा होता है, उसको अपने माउथ के अंदर, अपने स्टमक के अंदर जो है वो कैरी करती है, और वहीं पर बाकी जितनी भी डेवलपमेंट है उस बच्चे की उस टैडपोल लार्वा से एडल्ट बनने तक जो टाइम पीरियड है वो सारा फीमेल के स्टमक के अंदर होता है। और देन फीमेल जो है उसकी स्टमक से बाहर माउथ के थ्रू जो है वो न्यू वन जो है वो बाहर आता है, और इस तरह से उसकी बर्थ होती है। सो फीमेल जो है वो सारी की सारी, इसमें क्या होता है पूरे एग्स जो है वो इन्हें स्वेलो कर लेती है। जब वो एग्स को स्वेलो करती है तो वो एग्स जो है वहां से मूव करते हुए स्टमक में पहुंचते हैं, और वहीं पर वो टैडपोल लार्वा में चेंज हो जाते हैं। इस दौरान फीमेल जो है फीमेल की जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ड्यूरिंग ब्रूडिंग कंडीशन, जिसमें ब्रीडिंग जो ब्रूड कर रही है, कर रही है, डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही है अपने जो न्यू बॉर्न्स हैं, तो उसमें दौरान जो फीमेल जो है वो पूरा का पूरा स्टमक जो है वो फिल कर लेती है अपना इन एग से। तो उस दौरान ना तो वो कुछ खाती है, और चूंकि खाती नहीं है इस वजह से जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। सो दैट्स कंडीशन इन दैट कंडीशन the Rheobatrachus newborns can be developed inside the stomach. सैलेमेंडर और सिसिलियंस जो कि विविपेरिटी और ओवोविविपेरिटी शो करते हैं, ये खास तौर पे सैलेमेंडर और सिसिलियंस में होती है। इनमें भी जो है वो मदर केयर जो है खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पाइपा फीमेल जो है, इसमें देखें ये फीमेल जो है वो कैरी कर रही है एग्स को। इसी तरह कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं, मतलब डिफरेंट इसकी स्पीशीज हैं पाइपा की, और ये सारे के सारे मुख्तलिफ कुछ कवर बना रहे हैं एग्स के ऊपर जो है। कुछ ने जो है वो कुछ के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, वो लार्वास जो है वो अराइज कर रहे हैं, अभी उसकी बैक भी है। नेक्स्ट देखिए तो ये रियोब्रेक्टिस स्पीशी है जिसके माउथ के अंदर से स्टमक के अंदर से माउथ में, और माउथ से देन जो है वो बाहर न्यू बॉर्न जो है वो अराइज आ रहा है। सो दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ पेरेंटल केयर दैट हैव बीन शोन बाय द amphibians. So the next topic is the metamorphosis. What do you say about metamorphosis? Metamorphosis is a series of abrupt structural and physiological and behavioral change that transform a larva into the adult. यानी लार्वा स्टेज से अडल्ट फॉर्मेशन तक की जो चेंजेस आती हैं, जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं किसी भी जानदार के जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में, तो इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बिकॉज मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मीन फॉर्म। सो विच इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्ले अ रोल इन मेटामॉर्फोसिस? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मेटामॉर्फोसिस में रोल प्ले करती हैं? फॉर एग्जांपल क्राउडिंग जो है नंबर 1, और फूड अवेलेबिलिटी। जो बहुत सारे एग्स की जो है वो क्राउडिंग होना, और बहुत सारे लार्वास की क्राउडिंग होना, और नंबर 2 जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बड़ा इफेक्ट करती है मेटामॉर्फोसिस को। मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है जैसे कि न्यूरोसिक्रीशन जो है निकलती है हाइपोथैलेमस से, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं। अगर ये स्पेशली थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट ना हो, जैसे थायरॉक्सिन वगैरह, तो उसके नतीजे में कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, और वो लार्वा तो बन जाएगा लेकिन अडल्ट में चेंज नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फोसिस। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये प्रॉपर आपको लाइफ साइकिल ऑफ एनुरांस या फ्रॉग के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले देखिए लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के अंदर ये एग्स हैं, एग्स में एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, और देन ये किसी वाटर के अंदर ही ये जो है टैडपोल लार्वा में चेंज होते हैं। ये टैडपोल लार्वा जो है एक्सरसाइज में जो पहले फिन्स होते हैं, और फिन्स जो है वो लिम्स में चेंज होते हैं, और लिम्स से देन टेल खत्म होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है जब टेल खत्म होती है तो वो प्रॉपर यंग फ्रॉग यानी एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। The next one is the metamorphosis in salamander and caecilian. मेटामॉर्फोसिस जो है वो मॉर्फोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस देखी गई है सिसिल और सैलेमेंडर में। इनमें खासतौर पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। इस दौरान जो गिल्स जो हैं वो लॉस्ट होते हैं, कॉर्डल फिन्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं सैलेमेंडर और सिसिलियंस में। यानी लार्वल स्टेज से एडल्ट होने तक ये सारी चेंजेस आती हैं, यानी गिल्स जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, कॉर्डल फिन भी खत्म हो जाते हैं, और कॉर्डल फिन की जगह जो है वो लिम्स डेवलप कर जाते हैं, गिल्स की जगह लंग्स डेवलप करते हैं, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर डेवलप करती हैं। मेटामॉर्फोसिस इन एनुरॉन्स जो है, अभी मैंने बता दिया कि उसमें जो टैडपोल लार्वा है उससे फ्रॉग का बनना ये एक डोमेटिक चेंज होता है। इस दौरान लिम्स और लंग्स डेवलप करते हैं, टेल जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है, दैट मीन वो खत्म हो जाती है, और स्किन जो है वो थिक हो जाती है। इस तरह हेड और डाइजेस्टिव
ट्रैक जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के तौर पे नुमायाँ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पीडोमॉर्फोसिस जो है वो एक्सप्लेन की जाती है सैलमेंडर के अंदर। इससे पहले मैंने आपको पीडोमॉर्फोसिस बताया कि पीडोमॉर्फोसिस इज अ कंडीशन इन विच द लार्वा शोज द सेक्सुअल मैच्योरिटी। लार्वा जो है वो प्रॉपर अडल्ट तो नहीं होता, लेकिन वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो शो करता है। इस कंडीशन को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है, ऊंच नीच की वजह से जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती और अडल्ट फॉर्मेशन नहीं होती। सो दिस इज टोटली अबाउट द मेटामॉर्फोसिस। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एम्फीबियन पेरिल। कहते हैं कि एम्फीबियन खतरे में। एम्फीबियन क्यों खतरे में है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। एम्फीबियंस के खतरे की वजह क्या है, ये देखते हैं कि कौन कौन सी रीजंस हैं जो एम्फीबियंस के पेरिल का सबब बन रही है। फॉर एग्जांपल क्या जा रहा है कि मुसलसल जो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट है, दैट मीन डिफॉरेस्टेशन जो है वो की जा रही है। इसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट फॉल कर रही है। सनलाइट डायरेक्ट फॉल करने की वजह से, क्योंकि ये जानदार जो अपने आप को सूरज की रोशनी से हाई टेम्परेचर से बचाते हैं और उस दौरान जो है वो किसी भी शेड के नीचे छुप जाते हैं। तो लेकिन जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सनलाइट डायरेक्ट पहुंचेगी। जब सनलाइट डायरेक्ट पहुंचेगी तो उसका नुकसान जो है इन एनिमल्स को होगा। माइनिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं, और अर्बन स्प्रॉलिंग जो है यानी तेजी से शहरी आबादी का फैलना और फॉरेस्ट को कट करना, दरख्तों को कट किया जा रहा है, ये वो सबब है। और इस तरह एसिड डेपोजिशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी मानी जाती हैं कि ये वो सबब हैं जो एम्फीबियंस के खतरे का सबब है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन एम्फीबियंस, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी इफेक्ट ऑफ पीएच को देखें तो एम्फीबियंस के एम्ब्रियोज हैं वो खास तौर पे एक मतलब वो एक खास पीएच रेंज को जो है वो सस्टेन करते हैं। वो हर पीएच पे वर्क नहीं करते। कहा जाता है कि पीएच जो कि 5 और लेस देन 5 जो है, अगर वहाँ पर ये एम्फीबियंस होंगे, इनके एम्ब्रियोज होंगे, तो वो मारे जाएंगे। उनके एम्ब्रियोज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पीएच ऑफ 5 और लेस विल किल मोस्ट एम्ब्रियोज। दैट मीन कि 5 पीएच से ज्यादा होना चाहिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल या बेसिक पीएच होनी चाहिए, जिस एनवायरनमेंट के अंदर एम्फीबियंस के एग डेवलप करे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें इन्वायरमेंट जो है कहा जाता है कि 100 टाइम्स मोर एसिडिक है देन दे वर बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले कहते हैं कि वो इस जगह पर जो है वो इन्वायरमेंट मोर एसिडिक था। तो अगर जो है इंडस्ट्रीज एक बड़ा सबब बन रही है, तो पहले भी तो एसिडिक कंडीशंस थी, लेकिन वो एसिडिक कंडीशंस भी किसी तक काउंट होती हैं कि उस दौर में जो एम्फीबियंस है उनकी डेथ का सबब बनी होगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डिफरेंट रेस हैं। फॉर एग्जांपल 280 टू 320 नैनोमीटर रेंज की जो यूवी लाइट है, और ये भी एम्फीबियंस के एग्स को जो है वो किल कर देती है। There are the many kind of pollutants like the acid deposition, the removal of the ozone layer depletion, or the removal of ozone layer that you can say that depletion of the ozone layer जो है उसके नतीजे में sunlight direct fall कर रही है, और ये alarming situation create कर रही है for the amphibians population के वो they are in condition of threat. But एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, और ये एज अ जोलॉजिस्ट जो है मेरे लिए भी एक बड़ा अजीब सी बात है कि कहा जाता है कि इससे पहले एक मैस एक्सटिंक्शन हो चुकी है एम्फीबियंस की। एक बड़े पैमाने पर भी जो है एम्फीबियंस की एक्सटिंक्शन हुई है इन फैक्टर्स, जब ये फैक्टर नहीं थे, जब ये काजिज जो थे ना होने के बराबर थे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये याद रखिएगा कि एम्फीबियंस को सेव करना एज अ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, एज अ ह्यूमन, एज अ you can say that as a student of zoology, you have it's your duty to save the amphibians. So there must be some kind of steps that can be going by the government, and that the different NGOs can work for this. So this is totally about today topic. आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें सबसे पहले वोकलाइजेशन पढ़ी है। वोकलाइजेशन क्या होती है, फिर हमने पेरेंटल केयर पढ़ी है, नंबर 3 में मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, और लास्ट में हमने देखा है एम्फीबियंस इन पेरिल। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।